So thanks a lot once again joining. This is Reso platform, and today we are honored to have with us Sri Shurikant Dhasmana ji, a senior leader of the Indian National Congress and Vice President of the Uttarakhand Pradesh Congress Committee, a proud son of Dehradun, has been an active voice in Uttarakhand's political and social life since the days of state movement. And there are many more. There's a lot to speak about you, your personality. You don't need an introduction. You're beyond introduction. We understand that, but we can really figure out that your social dimension, your education, your political movements, the way you stood for democracy and for the protection of Indian Constitution across the nation. I'm talking about, but particularly Indian. I mean, this Uttarakhand state is outstanding, sir. We are very much glad and we are honored to have you on this platform. So, would like to Thank you. Thank you, Doctor. Just move on to my first question. This topic is certainly wonderful from academic point of view, from research point of view. It says like Uttarakhand 2025, the journey from aspirations to achievement. I would like to move on to my first question, which is certainly a very important question, says the dream and reality. Uttarakhand was born out of the aspirations of the hill people for self-governance, development and preservation of identity. After 25 years of statehood, do you think the vision that inspired the state movement has been truly realized? Or what are the major gaps that still remain? Thank you, Dr. Suren Kumar, for inviting me for such an important issue on your platform. I congratulate all the Uttarakhandis living in Uttarakhand, living outside Uttarakhand, in the country and abroad. We are celebrating the silver jubilee of the state. Now Uttarakhand is a 25-year-old young Uttarakhand, a young state. और जब हम युवा उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, when we are talking about young Uttarakhand, the most important thing is that हम लोगों को आज ये आत्ममंथन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम लोगों ने कैसा उत्तराखंड चाहा था. What was the main aspiration of Uttarakhandis? And the most important thing, that whether the political leadership of the state has qualified in fulfilling the aspirations of the Uttarakhandis. क्या हम उन सपनों को पूरा कर पाए हैं जो हमारे राज्य के आंदोलन करने वाले लोग थे? और जब मैं आंदोलन बोल रहा हूं तो केवल आंदोलन, इट इज नॉट ओनली द डेकेड ऑफ 90, it is right from 1952 when Shri P.C. Joshi, a leftist leader, he proposed, it was a proposal of leftist leader P.C. Joshi for the creation of separate hill state, Uttarakhand. और तब से लेकर के जो यात्रा शुरू हुई 1952 से लेकर के और राज्य बनने तक, उसमें बहुत सारे पड़ाव आए. कभी ये आंदोलन अखबारों का रहा, कभी ये आंदोलन बुद्धिजीवियों का रहा, कभी ये आंदोलन कॉफी शॉप में बैठ करके गॉसिप करने वाले लोगों का रहा. लेकिन वास्तव में ये आंदोलन उत्तराखंड राज्य के लिए निर्माण के लिए जो इच्छाएं लोगों की थी, वो इच्छाएं जागृत करने का काम सबसे पहले 90 के दशक में क्रांति रथ लेकर के श्री विनोद बड़थाल और मैं और हमारे साथी, जिसमें स्वर्गीय बर्फीलाल जाटा जो पर्वतीय विकास मंत्री रहे उत्तराखंड के, श्री नरेंद्र सिंह भंडारी जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे बाद में उत्तराखंड के, श्री मंत्री प्रसाद नथानी जो मिनिस्टर रहे उत्तराखंड में कैबिनेट के, इसी प्रकार से श्री बलबीर सिंह नेगी जो राज्य बनने के बाद भी एमएलए बने, राज्य बनने से पहले उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में एमएलए थे. ये हमारे सारे साथी पूरे राज्य के अंदर क्रांति रथ हम लोग लेकर के घूमे और हमने लोगों के अंदर इच्छा जताई, इच्छा पैदा करी, चाहत पैदा करी कि एक नया स्टेट उत्तराखंड का बने. और उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजंस थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस behind the demand of separate Uttarakhand state, they were the migration of youth from the hill state. Then second, हमारे
पूरे स्टेट की जो यहाँ की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ताकत है, यहाँ की महिलाएं, उनके कष्ट, उनकी सफरिंग्स, उनके सर पे घास का, पानी का, लकड़ी का बोझ, स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड की पूरे जो इंटीरियर इलाकों में हमारे कंधे में रख करके, पिनस कहते हैं हमारे यहाँ उसको, उसमें रख करके मरीजों को लाया जाता था, तब जाकर के सीएससी, पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हायर सेंटर में ले जाते थे। हमारे यहाँ तमाम जो एम्प्लॉयमेंट के रास्ते थे वो बंद थे पूरे उत्तराखंड में। बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था। इसके अलावा पूरे राज्य के अंदर जो हमारे विकास के जो मानदंड थे वो उत्तर प्रदेश से बिल्कुल अलग थे। अगर उत्तर प्रदेश के किसी मैदानी जिले में सड़क बननी होती थी और पहाड़ के किसी जिले में सड़क बननी होती थी तो उसके बिल्कुल क्राइटेरिया, उसका जो बनने का तरीका, उसके अलाइनमेंट्स, उसका बजट सब अलग था। हमारे यहाँ 1 किलोमीटर सड़क में जितना पैसा लगता था, वहां उतने में मैदानी क्षेत्रों में 10 किलोमीटर सड़क बन जाती। तो जो बजट एलोकेशन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था उत्तराखंड के लिए, और उसका जो डिस्पैरिटीज थी, जो गैप था, उसके कारण उत्तराखंड में जो विकास की रोशनी थी वो उतनी नहीं पहुंच पा रही थी आजादी के बाद। तो ये सारी बातें थी, सारे कारण थे जिसके कारण उत्तराखंड राज्य की डिमांड पैदा हुई। और जब हम क्रांति रथ लेकर के गए तो लोगों के अंदर ये विश्वास हुआ कि हम एक सेपरेट स्टेट बना सकते हैं। और 1993 में, उस समय हम चंद्रशेखर जी की पार्टी में थे, मुलायम सिंह जी उसके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। हमने देहरादून में बहुत बड़ा यहां पर कॉन्फ्रेंस करके रेजोल्यूशन किया कि हम उत्तराखंड स्टेट बनाएंगे अगर पावर में आएंगे। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि चंद्रशेखर जी उससे सहमत नहीं थे। समाजवादी जनता पार्टी उस जमाने में हुआ करती थी, उसका डिवीजन हो गया और उत्तराखंड वाज द मेन रीजन बिहाइंड द डिवीजन ऑफ दैट पार्टी। और उसके बाद समाजवादी पार्टी बनी। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रस्ताव में ये कमिटमेंट किया कि हम लोग सरकार में आएंगे तो इसके लिए प्रयास करेंगे। 94 में उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार बनी 4 दिसंबर 1993 को, और 5 जनवरी 1994 को, 5th of January 1994, 2 committees were created. One was विनोद बड़थौल कमेटी एंड सेकंड वाज रमाशंकर कौशिक कमेटी। और ये दोनों कमेटीज को ये जिम्मेदारी दी उस समय के चीफ मिनिस्टर ने कि आप राज्य कैसे बने इसके लिए काम करें। एक अलग से बजट एलोकेट किया 400 करोड़ रुपए का, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप राज्य के लिए प्रारूप बनाएं, और वो प्रारूप बना। हमने अपनी रिपोर्ट, उसका मैं ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था जो विनोद बड़थौल कमेटी थी। वी सबमिटेड आवर रिपोर्ट टू दी UP government, and it was the first written document ever which was accepted by the Uttar Pradesh government for the creation of separate state Uttarakhand. And then Ramashankar Kaushik committee, they worked for that creation of the state, and second report was Ramashankar Kaushik committee's report which was accepted by their government, and a resolution for the creation of Uttarakhand state was passed by the Uttar Pradesh Assembly and the Council, and it was sent to the central government. ये कहानी है एक जो इतिहास का एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये वास्तविकता है और इतिहास का एक हिस्सा है कि ये सबसे पहली सरकार थी और सबसे पहला रेजोल्यूशन था जो, लेकिन उस समय अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसके अनुसार उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मंडल कमीशन लागू हो, और उसके लागू होने से एक आंदोलन शुरू हो गया। एक तो 90 वाला आंदोलन था जो वीपी सिंह के जमाने में हुआ था, लेकिन ये आंदोलन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मंडल आयोग के 27% के रिजर्वेशन लागू होने से हुआ। और उस समय और भी कुछ इश्यूज थे जिनको लेकर के आंदोलन शुरू हुआ, और वो आंदोलन करते 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 अल्टीमेटली जो रिजर्वेशन का एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट था वो मूवमेंट बन गया उत्तराखंड क्रिएशन। और
मुलायम सिंह जी जो उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए दो कमेटीज बना रहे थे, प्रस्ताव पास करके दिल्ली को भेज रहे थे, वो हीरो की जगह विलेन बन गए। तमाम घटनाएं हुई, रामपुर तिराहा की घटना हुई बड़ी दुखद, मसूरी हुआ, कदीमा हुआ, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। Yes. But first resolution which was adopted by the state assembly for the creation of Uttarakhand state, it was in 1994 and then Samajwadi Party was in power, but unfortunately वो यश उनके हाथ में नहीं था, इसलिए एक मूवमेंट पूरे राज्य में स्टार्ट हो गया और अल्टीमेटली अलग अलग सरकारें आती रही जाती रही। 2000 में 9 नवंबर को ये स्टेट बन गया। 2009 नवंबर को जब ये स्टेट बना, मैं कांग्रेस में आ गया था और ये स्टेट बना, कांग्रेस की और सारी पॉलिटिकल पार्टीज की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रही। राज्य बनाने में यूनानिमसली पार्लियामेंट में बिल पास हुआ एंड द स्टेट वाज क्रिएटेड ऑन 9th of November 2000। अब जब ये राज्य बन गया, तो राज्य बनने के बाद सबसे पहले देयर वाज अ इंटरिम गवर्नमेंट व्हिच वाज लेड बाय नित्यानंद स्वामी जी एंड लेटर ऑन he was changed, he was replaced by Mr. भगत सिंह कोश्यारी जी। तो सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि 14 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट में हमारे पास 2 चीफ मिनिस्टर हो और जो असली काम उनको दिया गया था कि राजधानी बनाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो यहाँ का स्ट्रक्चर होगा उसको बताइए, यहाँ का जो फिस्कल मैनेजमेंट होगा उसके बारे में तय करिए कैसे होगा, यहाँ का जो पूरा स्टेट का जो स्ट्रक्चर होगा, प्लान का नॉन प्लान का, उसको तैयार करिए। वो काम करने की बजाय जो एक पॉपुलर गवर्नमेंट होती है उस तरह से, चाहे स्वामी जी रहे हो चाहे कोश्यारी जी रहे हो, वो काम करने लगे और जो असली इश्यूज थे जो उनको करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए, जिसके कारण आज भी when we see back, जब हम पीछे देखते हैं मुड़ करके, हम लोग पाते हैं कि हम उत्तराखंड की जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू आज जो चर्चा हो रही है कि हमारे पास एक परमानेंट कैपिटल नहीं है। परमानेंट कैपिटल नहीं है। कैपिटल के बारे में जो असेंबली में अभी 2 दिन का सेशन 3 दिन का हुआ, उसमें आपने देखा कितना विवाद आपस में नेताओं में कैपिटल को लेके हो गया। ये उस समय जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उस समय होना चाहिए, चलिए नहीं हुआ, उसका सजा बीजेपी ने भुगती और एनडी तिवारी चीफ मिनिस्टर बन गए, पहले इलेक्टेड। आप देखिए अगर आप 25 साल की यात्रा को अगर आप एवेल्यूएट करें तो उस एवेल्यूएशन में आप देखेंगे कि 25 साल में जो 5 साल में पहली सरकार ने इलेक्टेड गवर्नमेंट ने काम किया और अगली फिर सरकारों ने काम किया, 4 सरकारों ने, आप तुलना करेंगे तो 5 साल में जितना काम हुआ उतना काम अगले 20 सालों में नहीं हो पाया। मैं आपको गिनवा सकता हूं, आपको एक एक चीज बता सकता हूं। उत्तराखंड के अंदर चाहे जितने हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हो, दून यूनिवर्सिटी कब बनी? Whose brain child was दून यूनिवर्सिटी? सारे मेडिकल कॉलेजेस कब बने? जितने बड़े मेडिकल कॉलेजेस यहां पर बने, हल्द्वानी का बनाओ, देहरादून का बनाओ, ये कब बने? इसने किसकी सोच दी है? सारी सड़कों में जो पूरा एक नेटवर्क कनेक्टिविटी का, सड़कों का जाल अगर बना, किसने बनाया? ये सब तिवारी जी की सोच थी, क्योंकि उनके पास इतना लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव, इतना लंबा पार्लियामेंट्री, इतना बड़ा उनके पास एक्सपीरियंस था कि उन्होंने 5 साल में जो फाउंडेशन इस राज्य को चाहिए थी वो फाउंडेशन डालने का काम किया। उसी के ऊपर जितनी इमारत आज खड़ी है, अच्छी है खराब है जैसी भी है, 25 सालों में वो इमारत जितनी बनी वो उसी फाउंडेशन में बनी है जो नरेंद्र तिवारी जी ने फाउंडेशन डाली। और आज जब हम चर्चा करते हैं पूरे स्टेट के बारे में, 25 साल हम मना रहे हैं, हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमको ये जवाब जनता को देना पड़ेगा कि एस्पिरेशन जो उन लोगों की जिन्होंने शहादतें दी, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने डंडे खाए, जेल गए, जिन्होंने इतना संघर्ष किया, क्या हम 25 साल में उन सपनों को पूरा कर पाए हैं कहीं तक? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपके सवाल जो होंगे मैं उनका जवाब देता रहूं। So thank you so much, sir, responding this important question. Wonderful narrative, very comprehensive. We understand at the back of history what's the reason and mechanism the Congress Party has played, the leadership has played behind the development and formation of this particular Uttarakhand state. Thanks a lot for that wonderful narrative, elaborative. Would like to move on to my second question, very important question. Development versus displacement
In the last 2.5 decades, Uttarakhand has made progress in infrastructure and tourism, but also faced migration, unemployment, and environmental degradation. How do you view the balance between development and sustainability in Uttarakhand's growth model? This is a very good question, Dr. Saab. See, this state, Uttarakhand, it lies in the mid-Himalayas. And this mid-Himalaya, it is a seismic prone area. Because it is the youngest Himalayan part, youngest, Shaishav Kal mein, Bacha Himalaya. And the making process, इसका जो बनने का जो प्रोसेस है वो अभी हजारों साल चलना है. अभी इसमें तमाम तरह की सेस्मिक हलचलें, तमाम तरह की मूवमेंट्स, इसमें अर्थक्वेक्स हैं. आपको मालूम होगा कि we faced 2 major earthquakes in the decade of 90. Yes. There was an earthquake in 1991, which we call Uttarkashi Bhukam, and then there was a earthquake in 1999. It was Chamoli Rudraprayag earthquake. 2 हमने मेजर अर्थक्वेक्स देखे हैं. उसके बाद हमने 2013 की इतनी बड़ी आपदा देखी है जिसको हम केदारनाथ आपदा कहते हैं. वो केदारनाथ इसलिए कहते हैं बिकॉज जो मेजॉरिटी ऑफ द कैजुअलिटीज इट हैपेंड इन केदारनाथ, बट इट वाज नॉट केदारनाथ आपदा, इट वाज द आपदा ऑफ उत्तराखंड. 35,000 square kilometer area it was affected in 2013, and Kedarnath, Badrinath, Gangotri, Yamunotri, and Kumaon region, Tarai region, all the Uttarakhand state, it was affected by that disaster. So many people died in that disaster. There was such a huge loss of life, loss of properties, and the most important thing which I want to emphasize, इस स्टेट में अगर हम बैलेंस नहीं बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का, डेवलपमेंट का, और उसके साथ उसको अगर हम साइंटिफिक तरीके से नहीं करेंगे, अगर हम उसको वैज्ञानिक तरीके से नहीं करेंगे, अगर हम जो जियोलॉजिकल यहाँ की मजबूरियां हैं, जो यहाँ का टेरेन है, यहाँ का जो जिस प्रकार का ज्योग्राफी है, यहाँ की जो जिस प्रकार का यहाँ पे घाटी है, यहाँ पे चोटियां हैं, यहाँ पे नदियां हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट है. 67% of the forest land, total land, it is forest in Uttarakhand. We have got 47% forest and 20% forest land. उसको हमको कैसे प्रिजर्व भी करना है, फॉरेस्ट को. हमको यहाँ के पानी को प्रिजर्व करना है, हमको यहाँ के पहाड़ों को प्रिजर्व करना है, हमको यहाँ की जो ट्रेडिशनल जो यहाँ की चाहे खेती हो, चाहे ट्रेडिशनल यहाँ का हमारा पशुपालन हो, हमको उन चीजों को ध्यान में रख करके डेवलपमेंट करना है. हम अंधाधुंध अगर इसको अहमदाबाद बनाने की कोशिश करेंगे या दिल्ली बनाने की कोशिश करेंगे या हम इसको मुंबई बनाने की कोशिश करेंगे, वी कांट डू इट. एंड इफ वी आर गोइंग टू डू इट विल बी अ डिजास्टरस थिंग. वो बचेगा नहीं. ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर रोड करते रहे आप. व्हाट डू यू मीन बाय ऑल वेदर रोड? ऑल वेदर मीन्स इन एवरी वेदर, इन मॉनसून, इन समर्स, इन विंटर्स. बट जब से ऑल वेदर रोड ये शुरू हुआ, पूरे उस स्ट्रेच में आप देखिए कितने नए जो जोन्स हैं आपके भूसंकलन के, कितने ज्यादा बन गए, नए नए एरियाज बन गए. आप ऋषिकेश से लेकर के और बद्रीनाथ, ऋषिकेश से लेकर के केदारनाथ, ऋषिकेश से लेकर के यमुनोत्री, गंगोत्री, आप पूरे ऑल वेदर रोड का जो स्ट्रेच है उस पर आप जाइए, आपको लैंडस्लाइड जोन्स जो नए बन गए हैं हजारों की संख्या में. कितने लोगों की मौत इस बार चट्टान गिरने से हुई है. यात्री मर गए केदारनाथ में चट्टानों के गिरने से, यात्री मर गए यमुनोत्री में चट्टान के गिरने से. एक बच्ची बेचारी दबके मर गई चट्टान गिरने से. वो चट्टान क्यों गिर रही है? क्योंकि आप उसको इतना छेड़ कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी हैवी मशीन चला रहे हैं, जबकि ये मिड हिमालय अभी बनने के प्रोसेस में है. अभी इसमें हजारों साल लगने इसको बनने के. आपने बड़ी बड़ी हैवी मशीन पूरा पहाड़ छिल के रख दिया,
और ऑल वेदर रोड 4.5 महीना पूरा डिस्टर्ब रहा, वॉश आउट हो गया बद्रीनाथ जी में। परसों मैं नैनबाग से आ रहा था, नैनबाग से आते हुए मसूरी जाने हुए 3 जगह रोड बिल्कुल वॉश आउट है। 2-2 घंटे का जाम लग रहा है। जो अल्टरनेट रोड बनी है, ये तो हाल में आपको मसूरी का बता रहा हूं। आप इंटीरियर्स में चले जाइए, आप बद्रीनाथ जोशीमठ चले जाइए, आप केदारनाथ चले जाइए, आप कालीमठ चले जाइए, जितनी जगह ऑल वेदर रोड का काम हुआ वहां नए लैंडस्लाइड जोन बन गए, जिसके कारण लगातार वहां पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, वहां पर भू धसाव हो रहा है। वहां पर आप कभी कल्पना कर सकते थे? डिड यू एवर इमेजिन देहरादून में जो हुआ है सितंबर के महीने में? यस यस यस, सहस्त्रधारा पूरा खत्म हो गया। हाँ जी, वो फ्लैश फ्लड। कोई देहरादून की रिवर ऐसी नहीं बची, रिस्पना, बिंदाल, सौंग, तमसा, कोई रिवर ऐसी नहीं बची जिसमें फ्लड ना आया हो। लाइटिंग जो हुई है, क्लाउड बस्ट जो हुआ है, देहरादून में कभी नहीं होता था। क्यों हो गया? क्योंकि आपने सारे कैचमेंट एरियाज खत्म कर दिए, आपने सारे नाले खालों में कब्जे कर दिए, आपने नदियों को बिल्कुल नाले बना दिया। जो 2 यहाँ पे मेजर रिवर, यहाँ पे कैनाल्स थी, देयर वाज ईस्ट कैनाल एंड देयर वाज अ वेस्ट कैनाल। जितना कैचमेंट एरिया का पानी आता था वो सब इन कैनाल्स में चला जाता था। एक ईस्ट में रिवर थी रिस्पना और एक वेस्ट में रिवर थी। मैं रिवर थी बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि अब वो रिवर नहीं है ना, वो नाले बन गए जी, उनमें इंक्रोचमेंट हो गया। तो सारा पानी जो था वो कहां? अब वो पूरे देहरादून के अंदर आधे घंटे की बारिश होती है तो वेदर इट इज राजपुर रोड, वेदर इट इज सुभाष रोड, वेदर इट इज ईसी रोड, वेदर इट इज जीएमएस रोड, सब जगह वाटर लॉगिंग हो जाती है। जबकि देहरादून में एक जमाने में कभी वाटर लॉगिंग होती ही नहीं थी। यह स्थिति है। तो आपने जो सवाल किया कि डेवलपमेंट और इको, अगर हम यहाँ की इकोलॉजी को, यहाँ के एनवायरमेंट को, यहाँ की जो जियोलॉजिकल परिस्थितियां हैं, यहाँ पे जो तमाम टेरेन है, उसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे एंड वी विल ट्राई टू मेक केदारनाथ कोई, हम उसको टेम्पल अपना दिल्ली का कोई बहुत सुंदर बिरला मंदिर बनाने की कोशिश करेंगे तो विनाशकारी होगा। बद्रीनाथ जी में जो वहां पे ओरिजिनल विलेज था वो खत्म कर दिया, वो सारे मकान डिमोलिश कर दिए। वहां पे जब बुलडोजर चला तो जहां तप्त कुंड थे, तप्त कुंड वहां पे गायब हो गए। तो बद्रीनाथ जी में जब आपने सारा खत्म कर दिया और एक सुंदर इमारत बना दी, इमारत देखने नहीं लोग जाते वहां, वहां लोग बद्री विशाल के दर्शन करने जाते हैं, ओरिजिनल बद्री विशाल के दर्शन करने जाते हैं। वहां पर कोई सुंदर पत्थर से चमचमाते संगमरमर के पत्थर वो शोभा नहीं करते। वहां पे तो जो उस जमाने में, पांडवों के जमाने में जो मंदिर बना था, केदारनाथ जी में, बद्रीनाथ जी में, यमुनोत्री में, गंगोत्री में, उनके दर्शन लोग करने जाते हैं। आप उनको टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हैं, वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, वो इस देश की सनातन परंपरा के सबसे बड़े प्रतीक है। आप टूरिस्ट स्पॉट बना रहे हैं, टूरिज्म नहीं है, वो पिलग्रिमेज है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज। ये बेसिक अंतर समझना पड़ेगा। एक बहुत बहुत बारीक लाइन है, जिस लाइन को समझना पड़ेगा सरकार को कि आप पैसा कमाने का साधन नहीं बना सकते उसे। वो पूरे देश और दुनिया के सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था का प्रतीक है और आप सबसे बड़े झंडा बरदार बनते हैं। सनातन धर्म का सबसे बड़ा ठेका आप ही के नाम टेंडर खुला हुआ है और आप जो है सबसे ज्यादा अगर सनातन धर्म को अगर नुकसान करने का काम कर रहे हैं तो वर्तमान जो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो दोनों कर रहे हैं। आपको मालूम है किस प्रकार से केदारनाथ में सोने के चोरी का एक कितना बड़ा इशू चल रहा है। अब उसको मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे नहीं जिक्र करूंगा, लेकिन 25 सालों में ये भी तो इतिहास में आएगा। ये कितना बड़ा आरोप उस सरकार पे लगा जिस सरकार का ये ऐलान है कि हम तो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, हम सनातन धर्म के रक्षक हैं। तो कैसे रक्षक हो आप कि आपके रहते हुए केदारनाथ जी के मंदिर से 230 किलो सोना चोरी हो गया? तो ये बड़ा इशू है। तो डेवलपमेंट को और यहाँ की जो जियोलॉजिकल परिस्थितियां हैं, यहाँ की जो इकोलॉजी है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ के जो फॉरेस्ट है, यहाँ की जो रिवर्स है, यहाँ की जो सेंचुरीज है, यहाँ के जो नेशनल पार्क्स हैं, उनको बचाते हुए, सुरक्षित रखते हुए, संरक्षित रखते हुए अगर हम विकास करेंगे तो मैं समझता हूं उत्तराखंड बहुत आगे जाएगा। पूरी दुनिया का एक ऐसी जगह है उत्तराखंड, देवभूमि हम इसको कहते हैं। पग पग पर इसमें यहाँ मंदिर है,
कहीं देवी के हैं, कहीं शिव के हैं। यहाँ तो बहुत नानक मत्ता भी है, यहाँ पे पिराने कलियर भी है, यहाँ पे हेमकुंड साहिब भी है, और बद्री विशाल, केदार धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, 4 धाम तो है ही। तो ये तो एक ऐसी देवभूमि है, इसको संरक्षित रखने की आवश्यकता है। हमारे पास इतना खजाना है, इतना ऊपर वाले की कृपा है हमारे पास। मैंने आपको बताया कि पूरे देश के अंदर कोई स्टेट ऐसा नहीं होगा, पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे 67% फॉरेस्ट लैंड, out of which 47% is forest. We have got 2 national parks. हमारे पे 2 नेशनल पार्क थे, हमारे पे नेशनल सेंचुरीज हैं। उसके बाद भी गंगा, यमुना, शारदा, उनकी सारी ट्रिब्यूटरीज, इतनी सारी रिवर्स, हमारे पास ऐसी जगह है जहां पूरा ग्लेशियर से आच्छादित, पूरा बर्फ से आच्छादित पहाड़ है। उसके बावजूद अगर उत्तराखंड में 25 साल की यात्रा के बाद भी हम टूरिज्म और पिलग्रिमेज में अंतर नहीं कर पाए, टूरिज्म का डेवलपमेंट टूरिज्म के हिसाब से और पिलग्रिमेज का जो डेवलपमेंट है पिलग्रिमेज के हिसाब से अगर नहीं कर पाए, तो इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट कोई बात हो नहीं सकती। नेक्स्ट पिक्चर। So thanks a lot, sir, responding this important question. Second question, and how resources in Uttarakhand, there are plenty, but our intentions, our methodologies are very different at times. So that's the reason we struggle as a state. So would like to move on to my third question. A very important question says, sir, political and governance evolution. The state has seen multiple governments and political shifts since 2000. What, in your views, has been the biggest success and the biggest failure of political leadership in these 25 years, including your reflections from within the Congress organization? Dr. Saab, I told you that Mr. Narendra Tiwari was the only chief minister who completed his 5 years term. And the real foundation of Uttarakhand, it was laid by late Shri N.D. Tiwari. And the vision he had, the administrative capabilities he had, the administrative experience he had, the political parliamentary experience he had, there was no match. No match. And the most unfortunate part is that Uttarakhand 25 सालों में हम लोगों ने क्या दिया इस राज्य को? हमने 11 मुख्यमंत्री दे दिए साहब 25 साल में। बीजेपी पहले एंट्रिम गवर्नमेंट में 14 महीने में 2 मुख्यमंत्री दिए। पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट उनकी 2007 में बनी, 2007 से लेकर 2012 तक उन्होंने हमको 3 मुख्यमंत्री दिए। पहले खंडूरी जी दिए, फिर निशंक जी दिए, फिर खंडूरी जी वापस आए। उसके बाद फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, दुर्भाग्य से 2 मुख्यमंत्री हुए। लेकिन हमने पूरे 25 सालों में 3 मुख्यमंत्री दिए। और बीजेपी ने उसके बाद 2017 में दोबारा उनकी सरकार आई, 2017 से लेकर के और 2022 तक उन्होंने 3 मुख्यमंत्री फिर दे दिए। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत दिए, फिर तीरथ सिंह रावत दिए, फिर धामी जी दिए, और 2022 में बने, अभी धामी 2 चल रहे हैं। अभी पता नहीं 5 साल पूरे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन बीजेपी ने 11 में से 8 मुख्यमंत्री बीजेपी ने देने का काम किया। तो पॉलिटिकल, चाहे बेशक सरकारें 5-5 साल चली हो, उन्होंने 2012 से लेकर 17 की सरकार में एक बार कोशिश करी थी पार्टी तोड़ करके हमारी सरकार गिराने की, वो नहीं हो पाई कोर्ट की वजह से सफल। लेकिन सरकारें सारी 5-5 साल चली। उन 5-5 सालों में 25 सालों में मुख्यमंत्री होने चाहिए थे 5, हमारे पास मुख्यमंत्री हो गए 11। अब 11 लोगों की गाड़ी, 11 लोगों का घोड़ा, 11 लोगों की सिक्योरिटी, 11 लोगों का सारा स्टाफ, ये एक एक्सचेकर पे खर्चा भार ये उत्तराखंड की जनता के ऊपर पड़ा। ये सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट। पॉलिटिकल लीडरशिप, मैंने आपको बताया कि अगर हम पीछे मुड़ करके देखेंगे 25 सालों में हम कितनी लोगों की अपेक्षाएं पूरी कर पाए हैं, तो हम इस बात से अंदाजा लगाएंगे कि उत्तराखंड में इट वाज द फर्स्ट स्टेट विच हैड अ डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री। एंड इन 25 इयर्स हम एक कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाए हैं उत्तराखंड में कि डिजास्टर आने के बाद क्विक रिस्पॉन्स हो। लोग मर जाते हैं और सालों सालों लोग इंतजार करते हैं, दूसरी आपदा आती है तब हमें याद आती है। धराली अभी हुआ, अभी हरसिल हुआ, थराली हुआ, देवाल हुआ, धारचूला हुआ, पौड़ी हुआ। हम कुछ दिन चर्चा की, कुछ दिन अखबारों में की सुर्खियां बनी, फोटो खींचे, टूरिज्म हुआ और उसके बाद भूल गए।
हमें कितने ऐसे जगह हैं जिनको हमको रिहेबिलिटेट करना है, जिनको हमको डिस्प्लेस करके दूसरी जगह बसाना है, जो खतरे की जोन में लोग हैं, और कैसे हम पूरे उत्तराखंड में एक ऐसी फोर्स डेवलप करें कि अगर आपदा आए तो तत्काल जो लोग आपदा से सफर करें उनको हम तत्काल उनको डिजास्टर मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है उनको रिलीफ दें, उसके बाद उनका रिलीफ के बाद रिहेबिलिटेशन करें। ये सारी व्यवस्थाएं 25 साल में हो जानी चाहिए थी, हम नहीं कर पाए। राज्य में अनएम्प्लॉयमेंट जो आज जिस जगह पहुंच गई है और जिस प्रकार से बिहार के पैटर्न में उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहे हैं, दिस इज बिकम मध्य प्रदेश एंड बिहार, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर नकल हो रही है। सरकार कह रही है हमने बहुत अच्छा कानून बना लिया, और नकल कानून बनाने के बाद सरकार के अनाउंसमेंट के बाद पेपर फिर लीक हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट डायनेमिक्स में 25 सालों में इतना अनएम्प्लॉयमेंट कोई नहीं रहा जितना आज की तारीख में। दूसरा, हम इस स्टेट की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसके चारों तरफ पूरी विकास की धुरी घूमती है, यहाँ की महिला, उसके सर से घास का, पानी का, लकड़ी का बोझ आज तक नहीं उतार पाए। हम उनको, माता को जो इंटीरियर्स के इलाके हैं, आज तक उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाए, जिसके कारण आज सड़क पर बच्चा पैदा हो रहा है, जच्चा बच्चा की मौत हो जा रही है। चौखुटिया से लोगों को पैदल देहरादून आना पड़ रहा है सरकार को बोलने कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। घरसाली में मुझे अभी फोन आया कि वहां भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के धरना शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश के इंटीरियर के इलाके, वहां पे हेल्थ सर्विसेज बहुत खराब स्थिति में है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हेडमास्टर नहीं है, प्रधानाध्यापक नहीं है, एलटी नहीं है, टीचर्स नहीं है। तो जब आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे, एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, आप स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पाएंगे, तो आप पलायन कैसे रोकेंगे? हाउ इट इज पॉसिबल कि आप पलायन रोक दें? पलायन नहीं रुकेगा। किसी आयोग के बनाने से पलायन नहीं रुका करता, भाषणों से पलायन नहीं रुका करता। वी हैव टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज, we have to provide education, we have to provide health services, we have to provide connectivity, we have to provide the basic things, employment, तभी तो रुकेगा। कैसे रुकेगा? ये डिस्कस होना चाहिए था विधानसभा में। 3 दिन ये डिस्कस होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसको स्वीकार करता हूं, पश्चाताप करता हूं इस बात के लिए कि इस राज्य की पॉलिटिकल लीडरशिप उत्तराखंड की जनता की जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पे उतना खरा नहीं उतर पाई जितना उतरना चाहिए था। वो अपेक्षाएं हम पूरा नहीं कर पाए जो हमको पूरा करना चाहिए था। उतना रास्ता हम तय नहीं कर पाए 25 सालों में जितना रास्ता हमको तय करना चाहिए था। आज भी पहाड़ की माता बहन कई किलोमीटर से पानी, घास, लकड़ी अपने सर पे ला रही है। जच्चा बच्चा मर जा रहा है बिना इलाज के। आज भी नौजवान अपने बूढ़े माँ बापों को छोड़ करके पलायन करने को मजबूर है, माइग्रेट करने को मजबूर है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, घोस्ट विलेज बन गए हैं, भूता गांव बन गए। अगर कोई एक आदमी मर रहा है तो 4 लोग कंधा देने वाले नहीं है। दिस इज द रियलिटी ऑफ उत्तराखंड स्टेट एंड हिल एरियाज ऑफ द उत्तराखंड। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। हमें सोचना पड़ेगा, वरना लोग माफ नहीं करेंगे। पीपल विल नेवर फॉरगिव द प्रेजेंट लीडरशिप which has led the state in 25 years. It is unfortunate, but I have to say this. बहुत कड़वा है लेकिन सत्य है, सच्चा है। जी। कांग्रेस कमिटमेंट कर रही है। हम कह रहे हैं 2027 में हम आएंगे तो हम इन तमाम चीजों को सबसे पहले एड्रेस करेंगे। The most important thing, if the government is formed in 2027 in Uttarakhand, कांग्रेस सरकार इन सारे तमाम इश्यूज को एड्रेस करेगी रिलीजियसली। वी विल एड्रेस दिस इश्यूज। Thank you so much, sir, responding this important topic. Uttarakhand, the journey from aspiration to achievement. We responded to 3 important questions. You've given historicity, topography, how it is different, government formations, unemployment, real struggles, core struggles, fundamental struggles of Uttarakhand people who are actually struggling, specifically and particularly in the present government's context, and how they're being tormented, and a lot of other things from academic point of view, research point of view. As you also admitted that there should have been much more strides in our steps politically, leaderships also, but which has not happened, but that's a different domain.
So these are very important questions. We are very glad to cover you on this platform, RISO, and they're good questions from research point of view, from academic point of view. Our intention in RISO is to make a good society in order to, sort of make more record publishable. And from academic point of view and research point of view, main intention is to make a good society. That's the reason we keep having international and national interviews. So for the very first time, we recorded you. I'm sure it's going to be a wonderful possibility for our audience, sir. Thank you so much giving your precious time and appearing on this platform, RISO, sir. Thank you very much, Dr. Saab, and I will be available to you for next session, and we will certainly discuss more important points, more important issues related to Uttarakhand. Thank you very much. Thank you, sir.